Hello friends, in the previous session we had discussed some multiplication techniques. These were very simple, 100 base multiplication techniques, 2 by 2 cross multiplication techniques, and I had put an indication that yes, there are some more complex versions are there, so we will discuss. 2 by 2 cross multiplication આપણે શીખ્યા હતા. Now we will plan for 3 by 3. For example, there is one number. તમારે તમારી રૂટીન મેથડથી જો આનો આન્સર લેવો હોય, and if you don't have any electronic equipment with you, so I think you will do first line, second line, third line, and then fourth line માં તમારો આન્સર આવશે. I am showing a method. This is not only useful for your calculation power, but this will act as your mental tonic also. આની કન્ટિન્યુઅસ પ્રેક્ટિસ કરશો તમે એટલે તમને ફાયદો પણ થશે, તમારી મેન્ટલ ફર્ટિલિટી ડેવલપ થશે. Once you know the method, knowing is not important in maths, practice is important. If you don't practice, તમે ગમે તેટલી મેથડ શીખશો, શીખીને ભૂલી જશો, તમને ક્ષણિક આનંદ મળશે કે હા એક મેથડ મળી છે, પછી એકચ્યુઅલી જ્યારે આપણે પરફોર્મ કરવાનું છે ત્યારે આપણી જૂની મેથડ જ યાદ આવશે. એટલે આની કન્ટિન્યુઅસ પ્રેક્ટિસ કર્યા કરજો. યુ આર નોટ કિડ્સ, એટલે કોઈ પણ નંબર લેવાના 3x3, જે પણ આપણી પાસે હથિયાર હાથમાં હોય, પેન કાગળ, એનો યુઝ કરીને આપણે એની પ્રેક્ટિસ કરી રાખવાની અને મોબાઈલથી ચેક કરવાનું કે ભૂલ નથી થતી ને. મેથડ એટલા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે ઘણું બધું માઇન્ડમાં યાદ રાખવું પડે. સીધો આન્સર્સ આપણે લખવાનો છે. See how I am doing and then I am explaining. This is answer. તમે જોયું કેટલો ટાઈમ લાગ્યો? I don't think મિનિટ પણ થઈ હશે, maybe 20-30 સેકન્ડ. So you can also get the answer at the same speed. Just તમારે practice કરવાની છે. And the second biggest advantage of this method is, at a first stroke you come to know which is your last digit. તમે જે ટ્રેડિશનલ મેથડ કરો છો એમાં છેલ્લે 3 લાઈન લખ્યા પછી 4th લાઈન આવશે, આન્સર આવશે, એટલે તમને ખબર પડશે કે મારો આન્સરનો લાસ્ટ ડિજિટ શું છે. આ મેથડમાં ફર્સ્ટ સ્ટ્રોકમાં તમને ખબર પડી જાય છે કે તમારો લાસ્ટ ડિજિટ, તમારો આન્સર શું છે. ફોર એક્ઝામ્પલ 2 3 4 into 1 2 4. At a first stroke I come to know my answer is going to end with 6. 4 4s are 60, right? So for example, in any competitive exam, if you have 4 options, if this is your answer and luckily you have only one answer ending with 6, you don't need to waste your time. Straight away this is going to be your answer, right? Let us learn first. I think in the previous session we had done 2 by 2 cross. Should I repeat? Let us see. 32 into 42. First step, 2 2s are 4. No zero, nothing. First step, multiplication of these two. If it is single digit, put as it is. If it is in 2 digit, we'll write the unit digit and the other digit will go as a carry. 2 2s are 4. Next step, 3 2s are 6, 4 2s are 8. So 6 plus 8, 14, 1 carry, 3 4s are 12 and 1 30. This is 2 by 2. अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, प्रीवियस वीडियो देखना, इसमें आप डिटेल में समझाया हुआ है. उसमें सिर्फ 3 स्टेप थे. पहला ये प्रोडक्ट, दूसरा ये क्रॉस का एडिशन और तीसरा ये. अब इसमें 5 स्टेप है. कैसे? पहला ये, फिर ये क्रॉस करके एडिशन, फिर तीनों स्टेप, फिर लास्ट 2 एंड फिर लास्ट. ओके, धीरे धीरे देखते हैं. पहला 6 5 30. याद रहता है तो बहुत खूब, नहीं रहता है तो कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, साइड में कैरी लिखते जाओ. ठीक है. 6 5 30. 2 डिजिट आया 30, सो 0 किया, यहाँ 3. अब नेक्स्ट पार्ट सेम जो 2 by 2 में किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ऐड करो. 3 5 15, 6 2 12, 15 plus 12 27, 3 कैरी, 30. वापस 0 लगाया, 3 कैरी अगेन,
पहले से देखते हैं। पहला स्टेप ये था 6 5 30 0 3 कैरी। दूसरा स्टेप किया 15 + 12 27 एंड 3 0 30। अब तीसरा स्टेप, तीसरे स्टेप में सब कुछ आएगा। 3 कैरी है, माइंड में याद रखना। पूरा क्रॉस, ये 2 का मल्टीप्लीकेशन, ये 2 का मल्टीप्लीकेशन और ये 2 का मल्टीप्लीकेशन। सो 10 + 24 34 34 + 6 कितना हुआ 40 और 3 कैरी थी, भूल नहीं जाना। सबसे बड़ी चैलेंज यही है, या तो कोई स्टेप ऐड करना भूल जाओगे या तो सब कुछ किया तो कैरी ऐड करना भूल जाओगे, तो आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए प्रैक्टिस करो। 10 and 24 34 and 6 40 and 3 कैरी थी 43, राइट। 3 कैरी, नाउ वी हैव 4 कैरी। तीसरा स्टेप खत्म। अब वापस जाते हैं। पहला स्टेप ये था, दूसरा स्टेप ये दोनों का क्रॉस था, तीसरा स्टेप ये सब कुछ आ गया, कंप्लीट क्रॉस था। चौथा स्टेप, अब ये पहला भूल जाओ, बिल्कुल सीक्वेंस में जा रहा है। ये 2 का क्रॉस और ये 2 का क्रॉस। सो 4 + 12, 4 × 3 and 2 × 2, राइट। कितना होगा 12 + 4 16, ओके। 16 and 4 कैरी थी, तो 20 का वापस 0 आया, 2 कैरी एंड लास्ट स्टेप 2 4 द लास्ट स्टेप सिर्फ ये 2 4 द 8 एंड 2 कैरी थी, इसलिए 10 रख दिया फाइनली, ओके। सो आंसर इज 100 300। आप चेक कर सकते हो कैलकुलेटर से कि सही है। वापस पहले थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी, 2 4 5 कर लोगे तो फिर बहुत इजी हो जाएगा। वापस देख लो एक बार। पहला स्टेप 6 5, दूसरा स्टेप 3 5 and 6 2, तीसरा स्टेप सब कुछ 2 5 6 4 3 2, क्लियर। चौथा स्टेप में ये पहला बंद कर दो, 2 2 and 4 3, एंड फिफ्थ स्टेप में 2 4, क्लियर। बिल्कुल सीक्वेंस 1 2 3, ये फोर्थ से फिफ्थ में ये भी 1, ओके। प्रैक्टिस करते रहना, पता चलेगा कितना फास्ट एंड एक्यूरेट कैलकुलेशन होता है। चलो ये करते हैं वापस। 4 4 = 16, 1 कैरी, क्लियर। नेक्स्ट स्टेप 8 and 12, 4 2 and 4 3 जा, so 8 + 12 20 and 1 कैरी थी, so 21, 2 कैरी। थर्ड स्टेप 8 + 4 12, 12 + 6 18 and क्या कैरी थी 2, 18 + 2 20 का 0 लिख दिया जाए, वापस 2 कैरी। 3 स्टेप खत्म। फोर्थ स्टेप में 4 + 3 7 और क्या कैरी है 2 9। लास्ट कोई कैरी है अभी नहीं है, लास्ट है, देख लो एक बार। 4 4 = 16, 1 कैरी, 12 and 8 20 and 1 21, 2 कैरी। अब 8 and 4 12 and 6 18 and 2 20 0, 2 कैरी। 4 and 3 7 and 2 9, 2 कैरी थी, ऐड कर दी, वापस लास्ट स्टेप 2 1 जाओ, क्लियर। प्रैक्टिस करते रहो, आता रहेगा, और ज्यादा करते रहो और ज्यादा मिलता रहेगा, और उसके बाद आप एक्चुअल जाओ। ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स है, बहुत सारे कंसेप्ट्स है जो आपको सॉल्व करते रहो, उसके बाद आप एक्चुअल टॉपिक्स पे जाओ। क्योंकि मैथ्स का कोई भी एग्जाम्पल नहीं है जिसमें आपको कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे टाइम एंड डिस्टेंस हो, टाइम एंड वर्क हो, एवरेज हो, लीनियर इक्वेशन हो, रेशियो हो, परसेंटेज हो, पार्टनरशिप हो, प्रॉफिट लॉस हो, प्रोग्रेशन हो। अल्टीमेटली कोई ना कोई आपका लॉजिक तो सब कुछ पढ़ चुके हैं हम। फाइनली कैलकुलेशन आएगा, और हम मैक्सिमम स्टूडेंट्स की गलतियां होती है कैलकुलेशन में, या टाइम ज्यादा जाता है या एक्यूरेट आंसर नहीं आता, जो आपका कॉन्फिडेंस तोड़ देती है। सो जल्दी जल्दी सारे टॉपिक्स खत्म करने का पैनिक करने बजाय आप अच्छा सा कॉन्फिडेंस बनाओ अपने फंडामेंटल्स पे। डिविजिबिलिटी रूल्स है, डिवीजन थियरम्स है, मल्टीप्लिकेशन टेक्निक्स है, एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे फास्ट करना है, दैट विल हेल्प यू अ लॉट, राइट। सो कीप ऑन डूइंग दिस इज 3 by 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। थैंक यू। चलो।